Yes, good afternoon, all of you. Welcome to online classes of Yale Public School. Today we will continue our GK chapter number 17, and chapter name is Strange Habits, Stranger Birds. So let's start. Here is an interesting read about strange looking birds and their habits. First one is Hodgin from northern and central South America. Okay, it's also known as stink bird or skunk bird for its unpleasant odor. Okay, इस bird की body में से एक unpleasant smell आती है. That's why इसे हम stink bird या skunk bird कहते हैं. It's also known as reptile bird. Here, Hodgin is herbivores and like to eat leaves and fruits. Clear? Now, next one is kakapo. It's from New Zealand, known as a heavy owl-faced flightless nocturnal parrot that mates only 3 times in 10 years. Okay, its face look like a owl. Okay, ये weight में heavy है and इसका जो face है, it's look like a owl. Okay, it's also called the owl parrot. Clear? And its flightlets fly नहीं कर सकता है. It active at night and asleep during the day. Okay, nocturnal means ऐसे nocturnal हम ऐसे animals या bird के लिए use करते हैं word that active at night जो कि night में active होते हैं and asleep during the day. Okay, it lives on the ground and cannot fly. Clear? Now come to next one. That is long-wattled umbrella bird. It's from Ecuador to Colombia, and it is rare in number. It's known for the large crest that hangs down over its beak and the wattle that hangs down from its chest. Okay, ये अपनी large crest के लिए famous है. Okay, and its head on its fur. आपको देखिए यहाँ पे पिक्चर में इसके हेड पर यहाँ पर ये फर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. ओके, इट्स क्रेस्ट. सो ये अपनी ये जो लार्ज क्रेस्ट है इसके लिए फेमस है. ओके, एंड दैट जो कहाँ हैंग हो रही है, दैट हैंग डाउन ओवर इट्स बीक एंड द वेटल दैट हैंग्स डाउन फ्रॉम इट्स चेस्ट. ओके, एंड जो वेटल मीन्स इसका आप यहाँ पर फ्लैशी एक लोब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, एक लोब की तरह फ्लैशी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. इट्स अ वेटल. ओके, and ये कहाँ hang down हो रहा है, from its chest. Okay, it's hang down from its chest. Now come to next one, that is Dinosaurus hornbill. It's from Southeast Asia. It's known for its large bill and a curled reddish orange horn above it that is used to amplify the bird's call. Okay, ये किस चीज के लिए फेमस है? For its large बिल मीन्स बीक. अपनी जो लार्ज बीक है इसके लिए ये फेमस है. ओके, इसे हम जानते हैं. एंड इसकी बीक के यहाँ पर अपर में आपको देखिए रेडिश ऑरेंज कलर का एक कर्ड आपको एक हॉर्न दिखाई दे रहा है. ओके, इट्स यूज्ड टू एम्पलीफाई द बर्ड्स कॉल. ओके, इससे क्या होता है, जो बर्ड्स कॉल में जो फीमेल बर्ड्स होती हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. सो इट्स इंक्रीज द साउंड. ओके, उस साउंड को इंक्रीज करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है. ओके, this one. Clear? Now come to next one, that is Tawny Frogmouth. Tawny Frogmouth. It's from Australia and known for a mouth that resembles that of a frog, but it's surrounded by whiskers that help it to catch insects flying by. Okay, टॉनी फ्रॉग माउथ है. इसका जो माउथ है किससे रिजेंबल करता है, टू फ्रॉग. ओके, माउथ रिजेंबल करता है फ्रॉग से, बट इज सराउंडेड बाय द whiskers. Whiskers means long projecting hairs. Okay, यहाँ पर उसके माउथ के साइड्स में आपको यहाँ पर लॉन्ग जो है हेयर्स दिख सकते हैं प्रोजेक्टिंग. ओके, जो कि इसके फ्लाइंग जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें कैच करने में इसकी हेल्प करते हैं. ओके, एंड इट इज बिग हेडेड एंड इट्स ऑल्सो नक्टर्नल. ओके, ये भी नक्टर्नल है, एक्टिव इन नाइट. नाइट में एक्टिव होते हैं एंड इट्स कार्निवोर्स एंड इट्स बिलोंग टू नाइट जार फैमिली. ओके, इट्स नॉट आउल. ये आपको रिजेंबल करता हुआ दिख रहा है आउल से. इट्स लुक लाइक आउल बट इट्स अ फॉल्स आउल. ये आउल नहीं है. ओके, इट्स बिलोंग टू नाइट जार फैमिली. क्लियर? So I hope you all understood about chapter number 17. Yes, now come to chapter number 18. Chapter name is marine creature. Okay, marine means जो कि
सी और ओशियन में रहते हैं ऐसे जो एनिमल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, द क्रिएचर ऑफ ओशियन एंड कोस्ट्स आर कॉल्ड मरीन क्रिएचर्स। Read the given clues and name the creature shown below. First one is, it is the largest species of fish on the planet and its name is whale shark. Okay, it's the largest species of fish. Second one is, this creature is great at fishing. It can break open shells using stone. And what name is sea otter. Okay, समुद्री ऊद या फिर इसे सी ऑटर कहते हैं। ये फिशिंग में बहुत ही ग्रेट है, बहुत अच्छी फिशिंग करते हैं। ओके, फिश पकड़ते हैं एंड ये स्टोन को यूज करते हुए जो सी में शेल्स मिलते हैं उन्हें भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ओके, now third one is, this creature has an umbrella like bell with tentacles that help it to move and catch prey, and it's jellyfish. Okay, jellyfish ये जो है it's umbrella like bell होता है इसका with tentacles. Tentacles means long thin feelers. Okay, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में इस तरह से long and thin जो feelers हैं, tentacles जिसे हम कहते हैं, ये किस चीज में हेल्प करते हैं, इट हेल्प टू मूव करने में हेल्प करते हैं एंड टू कैच प्रे। प्रे मींस जो भी इनका शिकार है उसे कैच करने में इसकी हेल्प करते हैं। ओके, एंड इट्स जेलीफिश। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, इट इज आल्सो नोन एज द सी कैट। इट प्रोड्यूस नेचुरल एंटीफ्रीज व्हिच कीप्स द ब्लड मूविंग freely in its body in very cold habitat. Okay, it's also a marine creature and इसे हम सी कैट के नेम से भी जानते हैं। ओके, एंड ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक नेचुरल एंटी फ्रीज। ओके, फ्रीज मीन्स क्या होता है, हम सबको पता है, फ्रीज मीन्स कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, जम जाती है। ओके, एंड ये नेचुरल क्या फ्रीज करते हैं, एंटी फ्रीज। फ्रीजिंग के अगेंस्ट एक लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं एंटी फ्रीज, जो कि अगर ये किसी भी बहुत ज्यादा कोल्ड हैबिटेट में, ऐसा एनवायरनमेंट जहां बहुत ज्यादा कोल्ड है, वो एनवायरनमेंट वहां भी अगर ये जाते हैं, ओके, तो इनका जो ब्लड है वो फ्रीज नहीं होता। ओके, ब्लड मूविंग फ्रीली, बॉडी में जो ब्लड है उसका फ्रीली मूवमेंट होता है, ब्लड फ्रीज नहीं होता है। कि अगर हम बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन में जाते हैं, कोल्ड हैबिटेट में जाते हैं, तो हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो भी क्या होता है, फ्रीज होने लगता है, जमने लगता है। बट सी कैट एक नेचुरली एंटी फ्रीज प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो ब्लड है वो फ्रीज नहीं होता। ओके, एंड इट्स अटलांटिक वॉयलेज। क्लियर? Now next one is, this creature is banded with broad black and white bands. Its pointed nose gives it an excellent sense of smell that allows it to seek out prey hidden beneath the sand surface. And it's banded snake eel. Okay, इसकी बॉडी पर इस तरह से व्हाइट एंड ब्लैक देखिए, ब्रॉड ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पर आपको बैंड या स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है। ओके, दैट्स व्हाई हम इसे बैंडेड स्नेक ईल कहते हैं। ओके, एंड इसकी जो पॉइंटेड नोज है वो इसे इतना एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल देती है। इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की जो पावर है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, जो कि सैंड के बीनीथ मींस मिट्टी में के नीचे, सरफेस में के नीचे भी हिडन अगर इनका शिकार है, जिन एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को ये ईट करते हैं, उन्हें भी ये इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, हेल्प ऑफ नोज। ओके, क्लियर? नाउ, did you know an octopus has 3 heart and the color of its blood is blue? Okay, जो octopus है उसके 3 heart होते हैं and इसके blood का color कैसा होता है, blue. An electric eel is known to produce electricity sufficient enough to light up 10 electric bulbs. Okay, and ये 10 electric bulb आप उससे light up कर सकते हैं, जला सकते हैं, इतनी electricity produce करती है electric eel. Clear? So I hope you all understood about chapter number 18.